Good morning to all of you students. Today's topic is contour integration. So basically it is a process of integration along a closed curve, or we can say process of integration along a contour. So this is a method of evaluating certain integrals along paths in the complex plane. So in this we use the Cauchy residue theorem for solving this integration. So first type is the integration round the unit circle of the type integral 0 to 2 pi f of cos theta sin theta d theta. So where this function means f of cos theta sin theta is a rational function of cos theta and sin theta. So what is the rule? We will first of all we will convert sin theta cos theta into z, and for this we have to use this formula, that is sin theta is equal to e raised power iota theta minus e raised power minus iota theta divided by 2 iota, and when we convert it into z we get 1 by 2 iota, then z minus 1 by z, where z is equal to r e raised power iota theta, r is 1, then it becomes z is equal to e raised power iota theta. Similarly cos theta is converted into z, and we get 1 by 2 z plus 1 by z, and as z is equal to e raised power iota theta, its differentiation dz is equal to e raised power iota theta iota d theta, or we can write z iota into d theta, or d theta is equal to dz divided by iota z. So the integrand is converted into the function of z, and then we apply Cauchy residue theorem to evaluate the integral. So this is the first type. Second type is that if we have the integral like minus infinity to infinity f of x dx, where f of x is a rational function. So in this case what we have to do, we have to consider this function along the contour C consisting of lines along the x-axis from that is minus r to plus r, and the semicircle gamma above this axis, there is this x-axis having the line as a diameter. So then let r tends to infinity, then we are saying that this r tends to infinity. So if this function f of x is an even function, so this can be used to evaluate the integral 0 to infinity f of x dx. So third type is that if we have the integral minus infinity to infinity px divided by qx into sin mx dx, or we can write it also this as minus infinity to infinity integral of px divided by qx then cos of mx dx. So ये जो इंटीग्रल है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम. सो इसमें px और qx आपके पास पॉलिनोमियल्स होंगे, डिग्री ऑफ qx एक्सीड्स दैट ऑफ px, एंड द इक्वेशन qx हैज़ नो रियल रूट्स. सो जो इसमें रूल है उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन में ये चीज़ ऐड करेंगे. सो मीन्स हियर वी कंसिडर दिस फंक्शन वेयर सी इज़ द सेम कंटूर एज दैट ऑफ द टाइप 1. सो मीन जो टाइप 1 में कंटूर था सेम वही होगा, और फिर बाद में हम उसके ऊपर काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो इस पर हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर टाइप पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि यूज़ रेजिड्यू कैलकुलस टू एवेलुएट दिस इंटीग्रल. सो अब ये इंटीग्रल जो है हमारा कंटूर इंटीग्रेशन का टाइप 1 इंटीग्रल है. सो मीन्स जो हम यहाँ पे सर्कल है मीन्स ये यूनिट सर्कल है, और उसका रेडियस किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है. सो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप आ गया. तो अब हमें इसका रूल क्या कहता था, हम साइन थीटा अगर इसमें होगा या कॉस थीटा होगा, अगर जो फंक्शन होगा मीन्स साइन और कॉस थीटा का होगा, सो उस केस में हमें उसको जेड के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो सेम हम यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट हमारे पास इंटीग्रल जो आई है वो किसके इक्वल है 0 to 2 pi, then it is 1 divided by 5 minus 4 sin theta into d theta. सो अब हमें पता है sin theta किसके इक्वल होता है, वही यहाँ पे पुट करेंगे और d theta की भी वैल्यू पुट कर देंगे. सो वहाँ से हम इसकी वैल्यूज आएगी. हमें पता है कि दैट sin theta होता है e रेज पावर, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा थीटा, देन माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. सो जब हम उसको z के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 by 2 आयोटा, देन इट विल बी z माइनस 1 by z. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो z है हमारा वो है हमारे पास ई रेज पावर आयोटा थीटा. सो इसमें इधर से हमारा जो dz होगा दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज पावर आयोटा थीटा देन आयोटा इंटू डी थीटा, और डायरेक्टली लिख सकते हैं जो डी थीटा है वो हमारे पास आएगा डी जेड डिवाइडेड बाई आयोटा जेड. ठीक है. सो अब यही चीज़ें हम इसमें पुट कर लेंगे. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी इंटीग्रल आई दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा
0 to 2 पाई, पहले साइन थीटा को चेंज कर रही हूँ। सो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 टाइम्स, ये आपके पास आ जाएगा ई रेज पावर आयोटा थीटा, देन माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा डी थीटा। सो यहाँ से हम देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0 to 2 पाई, देन 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे जो ये -4 है, तो मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस देन 4, और क्योंकि आयोटा जो दैट इज -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, मैं इसको लिख देती हूँ आयोटा स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास ई रेज पावर आयोटा थीटा, देन माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब इधर से क्या हो जाएगा, ये आयोटा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आया 0 to 2 पाई, देन इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 से ये भी कैंसिल हो गया 4 का, इट इज़ 2 टाइम्स आयोटा बच जाएगा, एक आयोटा, और साथ में आएगा ई रेज पावर आयोटा थीटा, देन इट इज़ माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा थीटा, साथ में आ गया आपके पास डी थीटा। सो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हम डी थीटा की भी वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं और इस पूरे को हम जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 0 to, अब जब हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली इधर सर्कल लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा सर्कल, सो देन इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स, ये वाला पूरा पार्ट आपके पास हो गया आयोटा जेड, और दूसरी पार्ट भी हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स आयोटा बाई जेड, साथ में आ जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाई आयोटा जेड। सो मीन्स यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ से अप्लाई की है। सो मीन्स यहाँ से देख लें, ये वाला पार्ट है ये अप्लाई किया जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। सो यहाँ से ये इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, सो आई विल राइट हियर, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया 5, देन यहाँ पे हमारे पास आ गया सो मीन्स इस आयोटा जेड से इसको मल्टीपल हो गया इस पूरे पार्ट को, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 टाइम्स आयोटा जेड हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वैल्यू 2 टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी जेड, इसको मैं डी जेड में लिख देती हूँ। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें पोल्स फाइंड करने हैं। सो पोल्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो इसका ये पार्ट है डिनोमिनेटर उसको इक्वेट करना है 0 के। सो देयरफॉर आई विल राइट फॉर पोल्स 5 आयोटा जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -2 जेड स्क्वायर प्लस 5 आयोटा जेड प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट से जो हमारे पास जेड की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू, ये मैंने अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, वो आ जाएगी 2 आयोटा एंड आयोटा बाई 2। सो ये दो क्या आ जाएंगे, इसकी वैल्यूज आएंगी यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, जब हम डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सो क्लियरली यहाँ से क्या पता चलेगा, जो ये दो हमारे पास पोल्स आ गए, ये जो दो पोल्स हैं इनमें से सिर्फ एक ही पोल क्या करेगा, इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, मींस खाली आयोटा बाई 2 लाई करेगा, 2 आयोटा लाई नहीं करेगा। सो अब हमें इस पे क्या करना है, इसका रेजिड्यू निकालना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल पोल हो जाएगा। सो आई विल राइट ओनली z is equal to iota by 2 lies inside the circle C, and this is a simple pole। ये क्या है, हमारा सिंपल पोल आया, दिस इज सिंपल पोल। और अब इस पे हमें रेजिड्यू निकालना है, तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एट सिंपल पोल, सिंपल पोल कितना है, z इज इक्वल टू आयोटा बाई 2, और वो किस तरीके से निकालते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू a की जगह पे क्या है आयोटा बाई 2, देन z माइनस a की जगह पे हो गया आयोटा बाई 2, देन इट इज f ऑफ z है जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, मीन जो फंक्शन दिया हुआ था। सो फंक्शन में हमारे पास वो किसके इक्वल है, सो बेसिकली जो फंक्शन था उसकी वैल्यू थी हमारे पास ऐसे -2 टाइम्स जेड स्क्वायर
प्लस 5 टाइम्स आयोटा जेड प्लस 2। सो इसके हमने फैक्टर्स निकाले थे, वो मैं इधर लिख देती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोचेज टू आयोटा बाई 2, ये आ जाएगा जेड माइनस आयोटा बाई 2। सो इसके जो फैक्टर्स निकले थे, एक हमारे पास आया था 2 आयोटा और आयोटा बाई 2। सो ये आ जाएगा आपके पास इसमें 2z माइनस आयोटा एक टर्म आएगी, एंड अदर टर्म विल बी माइनस जेड प्लस 2 आयोटा। सो ये इसके आगे दो पार्ट्स। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट जेड अप्रोचेज टू आयोटा बाई 2। यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2z माइनस आयोटा, एक पार्ट ये आएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई यहाँ से होगा 2z माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस z प्लस 2 आयोटा। तो ये एक एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास खाली वैल्यू रहेगी लिमिट जेड अप्रोचेज टू आयोटा बाई 2, देन इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स माइनस जेड प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, आयोटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, मीन जेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 2, देन जेड की वैल्यू हमारे पास है आयोटा बाई 2, सो माइनस टाइम्स देन प्लस 2 आयोटा। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 3 आयोटा। सो ये हमने क्या कर दिया, रेजिड्यू निकाल दिया। अब हमने क्या करना, काशी थ्योरम अप्लाई करनी है। सो हेंस बाय काशी रेजिड्यू थ्योरम वी हैव, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रेजिड्यू दैट इज दिस इंटीग्रल आई जो हमारे पास है, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। सो रेजिड्यूज कितना था 1 बाई 3 आयोटा निकला, 1 बाई 3 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 1 बाई 3 आयोटा। सो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। सो दिस इज द आंसर। Example is that evaluate integral 0 to infinity cos mx divided by x square plus 1 into dx। सो अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लियरली ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास इसमें ये जो पार्ट है रैशनल फंक्शन है, मींस ये आपके पास आ जाएगा रैशनल पार्ट आ गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में cos mx का पार्ट है। तो यहाँ पे क्लियरली जो qx है उसकी डिग्री ग्रेटर देन px है, और qx के जो है हमारे पास नो रियल रूट्स हैं। सो मीन्स यहाँ से जो उसके रूट्स बनेंगे वो हमारे पास जो आएंगे दैट विल बी इमेजिनरी। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दैट सिंस जो दिस cos mx जो है दिस इज द रियल पार्ट, इज द रियल पार्ट। सो ये रियल पार्ट है किसका, ई रेज पावर आयोटा mx। सो देयरफॉर वी कंसिडर द फंक्शन, सो हम कंसिडर करेंगे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ z में, कंसिडर द फंक्शन सो एफ ऑफ जेड। सो एफ ऑफ जेड में आप किसके इक्वल लिख रही हूँ, मैं जेड में लिख रही हूँ। सो ये आ जाएगा ई रेज पावर आयोटा एम जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। सो ये मेरे पास फंक्शन एफ जेड आ गया। सो अगर मुझे इसके पहले पोल्स निकालने होंगे तो पोल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जेड को डिनोमिनेटर को हमें इक्वेट करना होता है 0 के। सो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो जेड के जो रूट्स आ गए दैट इज प्लस माइनस आयोटा। सो क्लियरली जो ये आयोटा है एक रूट है, ये दोनों सिंपल रूट्स है, मगर जो ये रूट आयोटा है वो लाई करेगा इस अपर हाफ प्लेन में, मगर जो माइनस आयोटा है वो इसमें लाई नहीं करेगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कि दैट ओनली z इज इक्वल टू आयोटा लाइज इन द अपर हाफ प्लेन of z plane। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके रेजिड्यू निकालेंगे। सो रेजिड्यू एट दिस सिंपल पोल वो क्या आ जाएगा, सो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट द पोल, पोल क्या है सिंपल पोल आयोटा पे, दिस इज इक्वल टू हमें पता है किसके इक्वल होता है, लिमिट जेड अप्रोचेज टू ए की जगह पे आयोटा है, देन जेड माइनस ए, जेड माइनस आयोटा हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा फंक्शन हो गया एफ ऑफ जेड। सो मीन्स एफ ऑफ जेड यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, सो एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा। सो ये इसके रूट्स है, तो वो मैंने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके लिख दिया।
है। सो यहाँ से जो z माइनस आयोटा एंड z माइनस आयोटा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा और ये आ जाएगा z प्लस आयोटा। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे आयोटा मीन z की जगह पे, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी। साथ में हमारे पास यहाँ पे एक टर्म और भी था, दैट वाज ई रेज पावर आयोटा एम जेड। सो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ई रेज पावर आयोटा एम जेड। सो अब जो ये ई रेज पावर आयोटा एम जेड और जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा, इसमें जेड की वैल्यू आयोटा पुट करनी है। सो ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एम डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कहाँ पे, इस रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन का। सो अब हमने क्या करना है, सो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट ओवर दिस क्लोज कंटूर सी ई रेज पावर आयोटा एम जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जो डी जेड होगा वो किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। सो सम ऑफ रेजिड्यूज में क्या आ जाएगा, ई रेज पावर माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, पाई ई रेज पावर माइनस एम। सो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। सो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। सो वेयर सी क्या है हमारे पास, कंटूर है। सो सी यहाँ पे हमारे पास कंटूर है, तो सी इज कंटूर। सो ऑल्सो बाई रेजिड्यू थ्योरम, सो जो रेजिड्यू थ्योरम से हमारे पास एक चीज़ और आती है कि दैट रेजिड्यू थ्योरम वी हैव, जो हमारे पास होल इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड जो होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से, माइनस आर से आर तक, देन एफ ऑफ जेड डी जेड और प्लस हो जाएगा ये जो हमारे पास सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल जैसे जो हम मेन फॉर्मूला में इसको गामा से लिखते थे, सो गामा ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो ये मैंने सम ऑफ रेजिड्यूज को शॉर्ट में लिखा है। सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ रेजिड्यूज। सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जब हम r को इन्फिनिटी टेंड करेंगे, सो आई विल राइट, जिस वक्त r इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा तो जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू किसके पे जाएगी। सो मैं लिखूँगी सिंस लिमिट z अप्रोचेस to infinity 1 डिवाइडेड बाई मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1। सो जब z इन्फिनिटी को चला जाएगा तो ये जो पार्ट है ये किसको चला जाएगा, दिस विल टेंड टू 0। सो मीन्स ये इन्फिनिटी होगा 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। सो इस केस में जो हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। सो हमारे पास अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे कि दैट बाई जॉर्डन्स लेमा, सो बाई जॉर्डन्स लेमा हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली ये जो इंटीग्रल ओवर दिस सेमी सर्कल गामा है, जब लिमिट किसको टेंड करेगी, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन दिस इंटीग्रल ओवर दिस सेमी सर्कल जो होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस अप्रोचेस टू दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो आई विल राइट एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी वी हैव, as r tends to infinity we have, so name it as equation number first। so यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, this integral that is integral minus infinity to infinity f of x, क्योंकि रियल पार्ट है, सो f of x dx, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि सेकेंड पार्ट अब 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। सो ये आ गया हमारे पास। अब हमने ऑलरेडी सम ऑफ रेजिड्यूज तो निकाल लिए हुए थे। सो सम ऑफ रेजिड्यूज जो हमारे पास था वो किसके इक्वल आया था, सो सम ऑफ रेजिड्यूज हमारे पास पाई ई रेज पावर माइनस एम आया था। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन कॉस ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई ई रेज पावर माइनस एम। सो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, पहले इस पार्ट के बाद हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे दैट ये आना था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम पहले मेन जो फंक्शन था वो लिख लेते हैं, जैसे ई रेज पावर आयोटा एम आपके पास था एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आता, पाई ई रेज पावर माइनस एम। सो यहाँ से जब हम इक्वेट करते रियल पार्ट्स को, सो आई विल राइट हियर इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी हैव,
सो हमारे पास आता है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट. सो ये हमारे पास आ जाएगा. सो हेंस आई विल राइट हेंस जब हम इंटीग्रल लेते 0 से लेके इन्फिनिटी तक, देन कॉस ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाता 1/2 टाइम्स दिस इंटीग्रल. और 1/2 टाइम्स जो ये हमारे पास पहला इंटीग्रल था, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस वाज कॉस ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स. सो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाती, दिस विल बी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2. देन इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी पाई ई रेज पावर माइनस एम. सो देयर फोर आई विल राइट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई ई रेज पावर माइनस एम बाई 2. सो विच इज़ द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इन पार्ट्स को सॉल्व करना है. सो थैंक यू.